Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will talk about some basics about respiration. First of all, what is respiration? We know all living things need energy to carry out their vital life activities. And this energy is provided from within the cell by the phenomena called respiration. तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपनी लाइफ एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए और ये एनर्जी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सेल के अंदर से प्रोवाइड की जाती है एक फिनोमिना के जरिए जिसको रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन इज द यूनिवर्सल प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन complex compounds containing carbon in a way that allows the cell to harvest maximum of usable energy. Respiration is a universal process. तमाम ऑर्गेनिज्म अपनी एनर्जी हासिल करने के लिए रेस्पिरेशन को ही इस्तेमाल करते हैं। रेस्पिरेशन ही तमाम ऑर्गेनिज्म को एनर्जी प्रोवाइड करती है, इसलिए कहा यूनिवर्सल प्रोसेस। इसमें होता क्या है? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर ब्रोकन डाउन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स की ग्रेजुअल ब्रेकडाउन होती है। इस तरह से ग्रेजुअल ब्रेकडाउन होती है तो कि मैक्सिमम यूजेबल एनर्जी रिलीज होती है। So respiration is a process by which living organisms obtain energy, or during respiration, carbon-containing compounds are broken down and maximum usable energy is released. In biology, the term respiration is used in two ways. One, external respiration, and the other is cellular respiration. More familiarly, the word respiration is used for the intake of oxygen and removal of carbon dioxide. But this is external respiration. This is organismic respiration. Exchange of gases. More familiarly, the term respiration means the exchange of respiratory gases, carbon dioxide and oxygen between organism and its environment. This exchange is called external respiration. आमतौर पर respiration का मतलब ये लिया जाता है intake of oxygen and removal of carbon dioxide. ज्यादा फेमिलियर टर्म इस तरह से है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है। और दूसरी जो वे जिसमें सेलुलर रेस्पिरेशन का वर्ड इस्तेमाल होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन, ये एक्चुअली एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस है। Cellular respiration is the process by which energy is made available to the cell in a step-by-step breakdown of carbon chain molecule in the cell. In cellular respiration, carbon-containing compounds are broken down to release energy. इस चैप्टर में हम cellular respiration की बात करेंगे. The process in the cell where carbon-containing compounds are gradually broken down to release energy. और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो है वो हम जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है वो हम 13 चैप्टर में बात करेंगे। नेक्स्ट है एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। हमारा कॉन्सेप्ट रेस्पिरेशन व्हिच टेक प्लेस in the presence of oxygen is aerobic respiration,
and the respiration which does not require your use molecular oxygen is anaerobic respiration. इस टॉपिक में हम देखेंगे कि रेस्पिरेशन का कौन सा हिस्सा एरोबिक है और कौन सा एनारोबिक. The most common fuel used by the cell to provide energy by cellular respiration is glucose. Glucose is the major fuel used by the cell to produce energy. सेल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जो मेन फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, जो मेजर फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, जो ज्यादातर फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, वो ग्लूकोज होता है. The way glucose is metabolized or broken down depends upon the availability of oxygen. सेल के अंदर ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म किस तरह से होगा, इसका इन्हिसार ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी पे है. Prior to entering mitochondrion, the glucose molecule is split to form two molecules of pyruvic acid. माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री से पहले ग्लूकोज की ग्रेजुअल ब्रेकडाउन होती है और ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन कंपाउंड होता है, उसकी ब्रेकडाउन से 2 molecules of 3 carbon compound pyruvic acid is formed. 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल बनते हैं जिनको पायरुविक एसिड कहते हैं. This is glycolysis. This step, this process is called glycolysis, breakdown of sugar, and it occurs in the cytosol, which is the soluble part of cytoplasm. The first step हम ये कह सकते हैं कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन का जो पहला स्टेप होता है, जो साइटोसोल में होता है, उसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, ग्लाइकोलिसिस कहलाता है. जैसा कि हम इस इक्वेशन में देख सकते हैं, ग्लूकोज C6H12O6 और प्रोडक्ट में 2 पायरुविक एसिड C3H4O3. C3H4O3, this is pyruvic acid. Glucose is actually oxidized into pyruvic acid. ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन हुई है पायरुविक एसिड, और यहाँ ऑक्सीडेशन करने वाला जो एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है, वो है NAD, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड. ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन हुई, मतलब ग्लूकोज से हाइड्रोजन निकले, ग्लूकोज से हाइड्रोजन रिमूव हुए. वो जो ग्लूकोज से हाइड्रोजन रिमूव हुए, उनको टेकअप कर लिया NAD ने, और NAD की रिडक्शन हो गई इनटू NADH2. तो ग्लाइकोलिसिस के दौरान ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो NAD है, जो रिड्यूस होकर NADH2 बन जाता है, और इस प्रोसेस में 2 ATP एनर्जी जो है वो रिलीज होती है. तो रेस्पिरेशन यानी सेलुलर रेस्पिरेशन का पहला स्टेप, breakdown of glucose into 2 molecules of pyruvic acid, oxidation of glucose into 2 molecules of pyruvic acid. NAD is reduced to 2 NADH2 and 2 ATPs are produced. This is glycolysis and it occurs in the cytosol before entering the mitochondria. This reaction occurs in all the cells, and biologists believe that an identical reaction may have occurred in the first cell that was organized on the earth. तमाम सेल्स में ये स्टेप होता है, ग्लाइकोलिसिस तमाम सेल में होती है, और बायोलॉजिस्ट को यकीन है कि जो प्लेनेट अर्थ के ऊपर पहला सेल ऑर्गेनाइज होगा, उसमें यही प्रोसेस होता होगा. The next step in cellular respiration varies depending on the type of the cell and the prevalent condition. ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बन गया. अब पायरुविक एसिड का जो फर्दर प्रोसेसिंग है
पायरुविक एसिड की फर्दर मेटाबॉलिज्म जो है, इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द सेल एंड द प्रिवेलिंग कंडीशन। टाइप ऑफ सेल, टाइप की सेल की मशीनरी के हिसाब से, और प्रिवेलिंग कंडीशन ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी। Cell process pyruvic acid in three major ways. सेल से पायरुविक एसिड, सेल में पायरुविक एसिड बन गया। अब पायरुविक एसिड की फर्दर प्रोसेसिंग तीन तरीकों से होती है, एंड दिस डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द सेल एंड द प्रिवेलिंग कंडीशन। नंबर वन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। नंबर टू, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। एंड नंबर थ्री, aerobic respiration. The first two reactions occur in the absence of oxygen. This alcoholic fermentation and lactic acid fermentation occur in the absence of oxygen. So referred as anaerobic respiration, without oxygen. जबकि aerobic respiration take place in the presence of oxygen. In aerobic respiration, there is a complete breakdown of glucose molecule in the presence of oxygen. Or here, glucose is oxidized to carbon dioxide, water, and lot of energy is released. ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बन गया। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल हो या ऑक्सीजन इस्तेमाल हो तो दो काम होंगे, या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगी या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगी। यानी पायरुविक एसिड will be reduced into alcohol, or pyruvic acid is reduced into lactic acid. If oxygen is not available or oxygen is not utilized, pyruvic acid क्या बन जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा या लैक्टिक एसिड बन जाएगा, या उसकी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगी या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगी। लेकिन अगर ऑक्सीजन अवेलेबल होगी तो पायरुविक एसिड की कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगी इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड लॉट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। Anaerobic respiration, alcoholic fermentation. In primitive cells, some eukaryotic cells such as yeast, pyruvic acid is further broken down by alcoholic fermentation into alcohol, that is ethyl alcohol and carbon dioxide. ये pyruvic acid दो मॉलिक्यूल दिखाए, C3H4O3, प्रोडक्ट में दो इथाइल अल्कोहल C2H5OH एंड 2 कार्बन डाइऑक्साइड। और याद रखें यहां पायरुविक एसिड की रिडक्शन हुई है। पायरुविक एसिड इज रिड्यूस्ड इनटू इथाइल अल्कोहल, और यहां रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो NADH2 है। Pyruvic acid will take up hydrogen from the NADH2 and is reduced into ethyl alcohol and carbon dioxide. Or NADH2 is then oxidized into NAD. जो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना था वो ऑक्सीडेशन थी। अब जो पायरुविक एसिड से इथाइल अल्कोहल बनी है, दिस इज रिडक्शन, or this is alcoholic fermentation occur in some yeast and some bacteria. इसी तरीके से lactic acid fermentation. In lactic acid fermentation, each pyruvic acid molecule is converted into lactic acid, C3H6O3, in the absence of oxygen. Equation देख सकते हैं, this is pyruvic acid C3H4O3, product में C3H6O3, that is lactic acid C3H6O3. Again,
पायरुविक एसिड इज reduced into lactic acid, और यहाँ reducing agent जो है वो अगेन NADH2 है, which provide hydrogen to pyruvic acid, and pyruvic acid is reduced into lactic acid, और NADH2 खुद ऑक्सीडाइज हो गया into NAD। यहाँ याद रखिएगा एरोहेड टूवर्ड्स NAD होना चाहिए, क्योंकि NADH2 ऑक्सीडाइज हो रहा है NAD। अगर एरोहेड टूवर्ड्स NADH2 हो गया तो आपका कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। आप ये कह रहे होंगे उस वक्त कि पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन हुई है और NAD रिड्यूस हुआ है। ऐसा नहीं है। यहाँ क्या होना है, पायरुविक एसिड की रिडक्शन होनी है इनटू लैक्टिक एसिड, और NADH2 जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसलिए एरोहेड टूवर्ड्स NAD। इस इक्वेशन में भी जिसमें पायरुविक एसिड की रिडक्शन हुई है इथाइल अल्कोहल में, एरोहेड टूवर्ड्स NAD होना चाहिए। लेकिन यहां पर आपने देखा था कि एरोहेड टूवर्ड्स NADH2 था, क्योंकि यहाँ ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन हुई थी और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो था वो NAD था, जो बन गया था NADH2। इसलिए एरोहेड का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। दिस फॉर्म ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन occur in the muscle cells of the humans and other animals during extreme physical activities such as sprinting, when oxygen cannot be transported to the cell as rapidly as it is required. Muscle cell जब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो उस वक्त उनको ऑक्सीजन की सप्लाई डिमांड के मुताबिक नहीं होती, तो सिर्फ पायरुविक एसिड बन रहा होता है और फिर पायरुविक एसिड रिड्यूस हो जाता है इनटू लैक्टिक एसिड। Both lactic acid and alcoholic fermentation yield relatively small amount of energy from the glucose molecule. सिर्फ 2 ATP रिलीज होते हैं, और वो भी ग्लाइकोलिसिस के दौरान। जो फर्मेंटेशन वाले स्टेप्स हैं जिसमें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, उसमें ATP प्रोड्यूस नहीं होते। तो अगेन ये आप देख सकते हैं, तो पहले स्टेप में ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बन गया, पायरुवेट बन गया, दिस इज ग्लाइकोलिसिस। 2 ATP प्रोड्यूस होते हैं और NAD रिड्यूस हो जाता है इनटू NADH2। ये हमारा कॉन्सेप्ट है यहां तक कि पहले स्टेप में ग्लूकोज से क्या बन गया, 2 पायरुविक एसिड। अब पायरुविक एसिड की फर्दर प्रोसेसिंग डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी या यूज ऑफ ऑक्सीजन। इफ ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल और यूज्ड, विदाउट ऑक्सीजन 2 काम होंगे। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो पायरुविक एसिड की रिडक्शन हो जाएगी इनटू लैक्टिक एसिड, यानी कुछ सेल के अंदर या हमारे मसल के अंदर, कुछ बैक्टीरिया में और हमारे मसल्स में जब ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगी तो पायरुविक एसिड की रिडक्शन हो जाएगी इनटू लैक्टिक एसिड। दिस इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और कुछ सेल जैसे यीस्ट है या कुछ बैक्टीरिया में और ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो पायरुविक एसिड से पहले एसिटाल्डिहाइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकलने पे उस वो एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा, और फिर उसकी एसिटाल्डिहाइड की रिडक्शन हो जाएगी इनटू इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल। यहाँ रिडक्शन आपको कैसे पता चला कि NADH यूज हो रहा है, NADH अपना हाइड्रोजन दे रहा है एसिटाल्डिहाइड को और वो इथाइल अल्कोहल बन रहा है। तो अगर तो ऑक्सीजन अवेलेबल ना हो या ऑक्सीजन यूज ना हो तो पायरुविक एसिड की फर्दर प्रोसेसिंग 2 तरीकों से होगी। या तो उसकी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगी कुछ मसल के हमारे मसल में एक्सरसाइज के दौरान, या कुछ बैक्टीरिया, या यीस्ट वगैरह में उसकी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो जाएगी। पायरुविक एसिड की रिडक्शन हो जाएगी इथाइल अल्कोहल में, या पायरुविक एसिड की रिडक्शन हो जाएगी इनटू लैक्टिक एसिड। दूसरी सूरत हाल यह है कि ऑक्सीजन अवेलेबल है या ऑक्सीजन यूज होती है। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो पायरुवेट की कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगी। पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम ए में ऑक्सीडाइज होगा, फिर पायरुविक एसिड की क्रेब्स साइकिल में एंटर होगा, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी। इसकी डिटेल्स हम आगे पढ़ेंगे।
तो उस दौरान पायरुविक एसिड की कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है और एनर्जी रिलीज होती है। तो बुनियादी तौर पर आज मैं ये बताना ये चाह रहा था कि सेलुलर रेस्पिरेशन मीन ब्रेक डाउन ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स टू रिलीज एनर्जी, और ये काम सेल के अंदर होता है। कुछ साइटोसोल में होगा, कुछ माइटोकॉन्ड्रिया में। पहले स्टेप में जो तमाम सेल में होता है, पहला स्टेप जो है वो तमाम सेल में होगा, ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनेंगे और थोड़ी सी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, इसको ग्लाइकोलाइसिस कहेंगे। फिर पायरुविक एसिड की जो फर्दर प्रोसेसिंग है उसका इन्हिसार टाइप ऑफ सेल और अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन पे है। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल ना हो तो पायरुविक एसिड की या रिडक्शन हो जाएगी इनटू लैक्टिक एसिड, इसे हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहेंगे, या उसकी रिडक्शन होगी इनटू इथाइल अल्कोहल, उसको हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहेंगे। और तीसरी सूरत हाल वो होगी कि जब ऑक्सीजन अवेलेबल होगी तो पायरुविक एसिड की कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगी इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी। इससे आगे हमने एक्चुअली सेलुलर रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म पढ़ना है, और वो एरोबिक रेस्पिरेशन का हम पढ़ेंगे कि हाउ इज ग्लूकोज ब्रोकन डाउन इनटू पायरुविक एसिड, ग्लाइकोलाइसिस की डिटेल पढ़ेंगे। फिर पायरुविक एसिड किस तरह से एसिटाइल कोएंजाइम ए में ऑक्सीडाइज हुआ, ये पढ़ेंगे। फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए किस तरह से क्रेब्स साइकिल में गया, क्रेब्स साइकिल में क्या होगा, ये पढ़ेंगे। और फिर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसकी बात करेंगे आइंदा आने वाले दिनों में। थैंक यू वेरी मच।